students. Today we are starting with your term 2 syllabus of computer, and your chapter is chapter 7, editing a worksheet, and this is we are doing it in your Microsoft Excel. And as you know that Microsoft Excel is an software which is used to perform mathematical calculations. And after when you enter your data in your worksheet, you need to make some changes in it, and you can add some data and edit its contents. So this chapter we are dealing with editing a worksheet, means to how to change the contents of a worksheet. So I start with my sheet 1. I have already created a table, a report chart of say 10 students, roll number 101 to 110, with their names and their total marks and a percentage column. So I have created this report chart. Now the first topic is selecting cells. Now how do you select a cell? As you can see, these are the uh, vertical columns, and if I click on the column heading, say A, so when I click on this A, my complete column will be selected till end. And if I again select this column D, these are the column headings, and when I select these column headings, my entire column will be selected. Similarly, if I want to select the complete row, I will click on these row headings. So these are my row headings. If I click on the row heading, the entire row till the end of the worksheet will be selected. So this is how I select a complete row or column. Then is entire worksheet. अब entire worksheet का मतलब है कि पूरी की पूरी worksheet को आप कैसे select करेंगे. एक तो हमारे पास शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल प्लस ए की. Okay, I'm just typing here to show you. So control मतलब आपने टाइप नहीं करना, आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल और ए को इकट्ठा. So can you see my entire worksheet is being selected here. And the another way is select all button, which is present on the first row heading. This one. See, can you see this button? ये रो हेडिंग जो फर्स्ट आपकी जो रो है और कॉलम हेडिंग है उसके साथ ही छोटा सा एरो है. So this is to select all. Okay, so this is more easy. When I click here, my complete worksheet will be selected. Alright. Then is adjacent rows or columns. Adjacent means इकट्ठे. तो अगर आपने इकट्ठे ही कोई columns rows करने हैं, then I'll just press shift key, and when I click on the headings, they will be adjacent, means इकट्ठे वो select हो जाएंगे. Then is non adjacent rows or columns. Non adjacent means कि एक मेरे को ये वाला करना है, उसके बाद मुझे ये G वाला करना है, तो उसके लिए I will press control key. Now see, ये बीच वाले 3 rows select column select नहीं हुए हैं. So if I click on the control key and then with the help of mouse I am selecting, तो my non adjacent columns are selected. इसी तरह से मैं रोज भी कर सकती हूँ. ठीक है, मतलब अगर आपने बीच बीच में से करने हैं, नॉन एडजेसेंट का मतलब होता है अलग अलग. नेक्स्ट इज for adjacent we will click on shift, and for non adjacent we will click on control. Now if I want to enter my numbers as text, see I am entering my number say 100. Okay, मैं इसका फोन बढ़ा देती हूँ so that it is visible to you. Okay, 200. These are my number entries, you can see. Okay, but now by default you can see these number entries, they are left aligned. If I want that these numbers should behave like a text, so I will put an apostrophe mark, this mark before my number. Press the enter key. See, my number will be treated as a text. ठीक है, but generally क्या होता है कि नंबर आपका होता है राइट अलाइन. ठीक है, और टेक्स्ट होता है लेफ्ट अलाइन. अगर आपको इसी नंबर को वी वांट टू
make it as text, इसका behavior change करना है, will place a apostrophe in front of this number. और अगर मैं इसके आगे भी कर देती हूँ, you can see it will also be like a text, right? I'll just delete it. Next is if I want to put a date over here, मान लो मैंने यहाँ पे date का column बनाया है, ठीक है, date, and I want to put a date over here. Suppose I'm entering here 3/2/2005. Okay, I press the enter key. What will happen? तो क्या it is not looking like a date format. For this, I will go on my this number alignment tab. number format में general में हम गए date के ऊपर. So can you see? नंबर पे आप जाएंगे अपनी sorry, 1 second. We'll just click on the date format. It's not coming. Once again, I'll tell you. If I enter this date format as 03/02/2005, it will come as a date format. ठीक है, now can you see that it has come under the date format. यहाँ पर ये हमारी date की format आ गई है, ठीक है. और इसको लाने के लिए we'll just right click over here, go to my format cells, then click on date. और आपके पास नंबर फॉर्मेट नंबर टैब के अंदर डेट के अंदर, अगर आप जनरल के अंदर जाएंगे तो वो उसको एज अ जनरल एंट्री उठा लेगा, लेकिन आपने इसको डेट की तरह शो करना है, डेट की तरह प्रेजेंट करना है. सो विल राइट क्लिक ऑन दिस नंबर, क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल्स, देन क्लिक ऑन डेट. और डेट में भी यू कैन चूज सो मेनी डेट स्टाइल्स आर देयर, ठीक है. दिस इज अ लॉन्ग वन, दिस इज अ डॉट वन, देन दिस इज द MMDD, DDY, ठीक है. ईयर पहले है देखो इसमें, तो मान लो हमने ये वाला ले लिया. So this is how it is displayed, right? I'll just delete it. Next topic is changing the cell contents. Now how can you change the cell contents? कुछ भी आपने लिखा हुआ है उसको आप चेंज कैसे करेंगे? देखिए पहले अगर मेरे को ये मार्क्स चेंज करने हैं, सपोज रजत के 58 मार्क्स हैं, I'll just click on this 58 and I'll simply write 85 and press enter key. My marks will be edited. Again I'll just undo this. Undo का मतलब होता है वापस रिवर्स करना किसी एक्शन को, वापस जाना. तो I'll just tell you, I'll just click over here and I'll press 85. Now you can see these two buttons over here. These are cancel. Cancel का मतलब कि अगर जो मैंने एडिटिंग करी है I want to cancel it, तो मेरा वापस वो 58 आ गया. और अगर मैं फिर से उसको 85 कर रही हूँ and if I am pressing this enter key means this is okay, it will enter it कि जो मैंने एडिटिंग की है that will be accepted. This is the meaning of these two buttons. These are cancel and enter. Next is your this was all about your replacing the content. Simple, just आपने डबल क्लिक सिंगल क्लिक किया और उसको चेंज कर दिया, ठीक है. एंड सेकेंड इज यूजिंग द डबल क्लिक मेथड. डबल क्लिक मीन सपोज किसी की स्पेलिंग गलत है, अब जैसे राहुल है, अगर मैंने इसके ऊपर दोबारा क्लिक करा वो तो सारा ही रिप्लेस हो जाएगा, बट आई वॉन्ट दैट आई शुड edit this content. For this I will double click over here. Okay, जब जैसे मैंने डबल क्लिक किया you can see on my status bar, can you see this edit mode? ये edit mode आ गया है, मतलब कि edit mode means यहाँ पे एक कर्सर आ गया है और इस कर्सर को मैं कहीं भी ले जाकर चेंज कर सकती हूँ उसके कंटेंट्स को, राइट. सो I'll press my enter key or this one, this enter. I can click over this also or I can click on my press my enter key, one and the same thing. So this is how my name has been changed. And you can see when my edit mode is over, it has come to my ready mode. Okay, तो ये हमारा edit mode और ready mode होता है. Once again if I tell you, I'm clicking over here
ठीक है, जैसे मैंने इसको करा तो मेरा एडिट मोड आ गया है एंड व्हेन आई हैव डन इट एंटर, वंस आई हैव चेंज इट, ओके, I'm changing the spelling, overwriting it, and I'm just pressing enter. See, it will again come to my Reddit mode. So these two modes are visible on the status bar: edit mode and my Reddit mode. Edit and ready mode. Now using the undo and redo. These two buttons are my undo and redo. देखो मैंने ये मान लो यहाँ पे मार्क्स चेंज कर दिए हैं कबीर किसके, राहुल के 59 से मान लो 95 कर दिए हैं, ठीक है, चेंज हो गया। आई वांट कि दिस बाय मिस्टेक आई हैव डन इट, सो आई प्रेस माय अनडू बटन एंड इट विल अगेन कम बैक टू 59। लेकिन अगर मुझे फिर वापस से वही काम करना है, पिछला वाला करना है रिवर्स, वो मैं रीडू से करूंगी, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अनडू एंड रीडू। Undo and redo means, undo means if we want to cancel the change and retrieve the previous data, we'll click on the undo. And redo means again quickly reverse the last action, उसका उल्टा वापस वो आ जाना। This is my undo and redo, ठीक है। And undo का जो मेरा shortcut है, that is control plus Z. Just increase the font, I'm just telling you to see it. कंट्रोल प्लस जेड अंडू का है और रीडू का है मेरा जो शॉर्टकट है, दैट इज कंट्रोल प्लस वाई। फाइन, एंड दीज टू बटन्स आर क्लियरली विजिबल ऑन माय व्हाट क्विक एक्सेस टूल बार। दिस बटन जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है, ठीक है, दिस इज माय क्विक एक्सेस टूल बार। ये मेरी क्विक एक्सेस टूल बार है, इसके अंदर देखो अंडू रीडू को मैंने टिक किया हुआ है, इसीलिए आपकी वो क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर विजिबल है। फाइन, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर इंसर्टिंग कॉलम्स एंड यस, इंसर्टिंग कॉलम्स एंड रोज। अब सपोज मेरा ये रोल नंबर है, नेम है, total है। Suppose I want to insert a column here after my roll number and name. रोल नंबर और नेम के बीच में मुझे एक कॉलम चाहिए। I'll click on roll number. ये मेरे टैब्स हैं, क्लिपबोर्ड, फोन, ठीक है। तो मैं I'll go on cells group. These are my groups. टैब्स मेरे ये हैं, फाइल, होम, इंसर्ट। देखो होम के अंदर मेरा क्लिपबोर्ड, फोन, अलाइनमेंट, ये सारे ग्रुप्स हैं। इंसर्ट के अंदर टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एप्स, ठीक है। पेज लेआउट के अंदर थीम्स, पेज सेटअप। सो विल गो ऑन होम, सेल्स ग्रुप, होम टैब, सेल्स ग्रुप, इंसर्ट कॉलम्स, इंसर्ट शीट कॉलम्स, ठीक है। देन माय कॉलम विल बी डिस्प्लेड। तो मैं नेम के आगे रखूंगी इसको, कर्सर को, इंसर्ट कॉलम, एंड हियर आई कैन सी माय कॉलम हैज appeared, and I'll put here tab of admission number. And I have told you also that you can increase your cells height, your cells width, your columns width you can increase by dragging this particular heading according to you, okay। तो यहाँ पे मेरा एडमिशन नंबर का एक कॉलम इंसर्ट हो गया। मान लो मुझे 2 कॉलम्स चाहिए, 3 कॉलम्स चाहिए, जितने कॉलम्स चाहिए आपने उतना सिलेक्ट करना है, ठीक है। 3 चाहिए तो 3 के ऊपर करके सिलेक्ट करेंगे, देखो 3 आ गए, ठीक है। 5 करेंगे कॉलम्स, इकट्ठे 5 ब्लैंक कॉलम्स चाहिए, 5 को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। So this is how you insert the column. Now I am just undoing it, okay. Next is, और अगर मेरे को कोई रो चाहिए, 101 के ऊपर एक और मेरे को रो चाहिए था, अगेन आई विल गो इंसर्ट sheet rows and you can see my row has appeared. मैंने रोल नंबर डाला और उसमें नेम की एंट्री करी और उसके मार्क्स डाल दिए। सो दिस इज हाउ आई, एंड इसमें भी वही तरीका है, जितने आपको रोज चाहिए ब्लैंक, मान लो ये 10 के 10, 11 रोज मैंने इकट्ठे सिलेक्ट किए और इंसर्ट का दे दिया, तो उतने ही रोज मेरे खाली इंसर्ट हो जाएंगे। आई एम जस्ट
redoing this, undoing this. Next topic is copying. The last topic is copying and moving the data. Copying and moving data again is very simple. अब जैसे मुझे इसको सपोज एडमिशन नंबर को डिलीट करना है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इसको यहाँ पे क्लिक करना है, डिलीट का बटन दबा दीजिए, ठीक है, तो योर दैट पर्टिकुलर कॉलम विल बी डिलीटेड, राइट। नेक्स्ट इज कॉपिंग एंड मूविंग। कॉपिंग का मतलब होता है किसी चीज का डुप्लीकेट करना, कि जो भी कॉपी कर रहे हैं मतलब वहां पर तो रहेगा ही रहेगा, बट उसकी एक एक्स्ट्रा डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। कॉपिंग रेफर्स टू डुप्लीकेटिंग ऑफ डेटा, वेदर इट इज टेक्स्ट, वेदर इट इज नंबर्स और वेदर इट इज अ फॉर्मूला। मान लो मुझको ये 3 एंट्रीज कॉपी करनी है, आई क्लिक ओवर देयर एंड देन आई क्लिक ऑन दिस कॉपी। मेरे होम टैब के ऊपर क्लिपबोर्ड टैब के ऊपर ही है कॉपी का ऑप्शन, और नीचे ले जाके इसको छोड़ा, जहां पे ले जाना है वहां पे उठाकर पेस्ट कर दिया, राइट। अनदर वे इज यू कैन सेलेक्ट एंड राइट क्लिक एंड कॉपी। यू कैन, जो राइट क्लिक करके आपका एक मेनू आता है उसको हम कंटेक्स्ट मेनू बोलते हैं, ठीक है, वहां से कॉपी करा, जहां ले जाना है माउस को ले जाइए and paste, so all okay, वहां पे भी आपका वो पेस्ट हो गया, अप्लाई हो गया। नेक्स्ट इज एंड अनदर थिंग इज इसका शॉर्टकट भी है, कॉपी का शॉर्टकट है, 1 सेकेंड, कॉपी का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी, मतलब कंट्रोल का जो बटन है कीबोर्ड से प्लस सी बटन, सी फॉर कॉपी। कट, कट का मतलब है वहां से डिलीट करके कहीं और ले जाना, कट का है कंट्रोल प्लस एक्स, एक्स फॉर कट। एंड पेस्ट का मतलब है वहां पर पेस्ट करना, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वी, राइट। जब आप कर रहे हैं यहां से, सपोज मुझे ये मोहित बच्चा है, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ जो मैंने करा था यहां से, ओके। दिस मोहित स्टूडेंट, आई वांट टू कट दिस एंट्री, पूरी एंट्री कट करनी है, यहां से कट कीजिए, नीचे ले जाओ और इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर एंट्री इज बीइंग डिलीटेड, वहां से कट हो गई है, यानी कि मूव हो गई है, ठीक है। जब भी आप कोई रेंज करते हैं, ठीक है, व्हेन यू सिलेक्ट अ रेंज, देखो दिस वाज इन द प्रीवियस चैप्टर आई टोल्ड यू नेम बॉक्स। अब कबीर है, कबीर नाम है, कबीर किस सेल में आ रहा है, C5 में, तो यू कैन सी इन द नेम बॉक्स इसका एड्रेस आ रहा है C5, और फॉर्मूला बार में उसकी जो कंटेंट आ रहा है कि उस C5 बॉक्स के अंदर क्या है, वो मेरा फॉर्मूला बार के अंदर आ रहा है, ठीक है। जिस भी बॉक्स को आप क्लिक करेंगे, नेम बॉक्स में उसका सेल एड्रेस आएगा और फॉर्मूला बार में कि उसके अंदर क्या कंटेंट है, क्या लिखा हुआ है, दैट विल कम। Now when I select a particular range, ये देखिए मैंने यहाँ तक रेंज सिलेक्ट कर लिया, मतलब रेंज मीन्स B5 से लेकर I have selected till my D14. This is my range. Okay, this is my range. Now I was telling about formula bar. Formula bar में भी आप एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने किसी चीज को सिलेक्ट करा, बेसिकली सेल के ऊपर करते हैं हम, यहाँ पर फॉर्मूला बार में भी जाओ, फॉर्मूला बार में भी जाके उसको एडिट करके एंटर कर दो, आप यू कैन सी दैट इट विल बी चेंज्ड इन दैट पर्टिकुलर सेल। So this was all about your editing the worksheet. It was a very easy and very genuine topic. Just read out chapter 7. Till then, thank you so much, and tomorrow I'll share you the answer key and the book exercise. Thank you, students.